بسم اللہ الرحمن الرحیم. من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، لین دین کے مسائل آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، تجارت کے مسائل، اسی طرح سے ہم خریدنے اور بیچنے کے یہ مسائل. پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع غرر سے منع فرمایا ہے. تو بیع غرر کے تعلق سے بات آپ کے سامنے چل رہی تھی کہ بیع غرر میں جو چیز بیچی جاتی ہے اس میں جہالت ہوتی ہے، اور جہالت کا مطلب بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کے بارے میں معلومات نہیں ہو پاتی ہیں صحیح طریقے سے. وہ معلومات جو کہ خریدنے بیچنے کے لیے ضروری ہیں اور خریدنے والے کو صحیح سے اس کا علم ہونا چاہیے، تو وہ علم نہیں ہو پاتا ہے، جس کی وجہ سے بعد میں جھگڑے کا اندیشہ رہتا ہے اور جھگڑا ہونے کی امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. تو جہالت مبیع یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کو نہ جاننا. میں نے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس کی مقدار نہیں جانتا کہ کتنی مقدار ہوگی، یعنی کتنے کیلو، یا کہہ لیجئے کہ اس زمانے میں سا اور مد ہوتے تھے تو اس کا بھی پتہ نہیں ہے، یا یہ کہ وہ چیز کیا ہے، کیسی ہے، اس کا بھی علم نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور یہ بھی ساتھ میں کلیئر کر دیا تھا کہ جو چیز سامنے ہوتی ہے اگرچہ کہ ہم یہ نہ جانیں کہ وہ کتنے کے جی ہے تو اس کا بیچنا جائز ہے، اس کا خریدنا جائز ہے. جیسے ٹھیلے پر فروٹ رکھے ہوئے ہیں، کوئی گیا اور کہا کہ یہ سارے فروٹ مجھے بیچ دو، اس کے سامنے ہے وہ، اب کتنا کے جی ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ سامنے ہے وہ چیز. کپڑا ہے سامنے ہے، کہا کہ یہ ہمیں بیچ دو اور اس کو خرید لیا. اب وہ کتنے میٹر کپڑا ہے یہ جاننا ضروری نہیں ہوتا ہے جب چیز سامنے ہو. اسی طرح سے درخت پر آم لگے ہوئے ہیں اور پکنے لگے ہیں تو اس کا بیچنا جائز ہوتا ہے. تو اب وہ کتنا توڑنے کے بعد نیچے آئے گا تو کتنا ہوگا وہ علم تو نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم کو درخت پہ نظر آ رہا ہے، ہم کو پتہ ہو جاتا ہے کہ کتنا آم اس میں ہوگا، ایک اندازہ ہوتا ہے یہ. تو اس اندازے کے لحاظ سے اس کا بیچنا خریدنا جائز ہوتا ہے. اس کو بھی جہالت کے باب میں، اس کو غرر کے باب میں نہیں لاتے ہیں. یعنی یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ ہم اس کی صحیح طریقے سے اس کی جو ہے مقدار نہیں جانتے، صحیح طریقے سے وہ کتنے کے جی ہے ہم نہیں جانتے، تو یہاں کے جی جاننا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. جب چیز اوپر سے نظر آتی رہتی ہے، سامنے سے نظر آتی رہتی ہے، تو وہاں پر کتنے اسکوائر فٹ ہے زمین ہے، کسی نے دکھا دیا کہ یہ زمین ہے ہم بیچ رہے ہیں، تو کتنے اسکوائر فٹ ہے یہ جاننا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کل لوگ زمینیں خریدتے ہیں تو اسکوائر فٹ وغیرہ معلوم کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو رجسٹری کرانا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے. تو سامنے جو چیز ہے اس کی یہ تفصیل جاننا کوئی ضروری نہیں.
ہوتا ہے، اس کے بغیر بھی اگر کوئی خریدتا ہے یا بیچ دیتا ہے تو اس کا خریدنا بیچنا جائز ہوتا ہے، کیونکہ وہ سامنے نظر آتی ہے۔ جی، تو میں نے اس کی کچھ مثالیں بھی آپ لوگوں کو دی تھی۔ اب آج کا جو مسئلہ ہے اسی سے جڑا ہوا، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خریدنے بیچنے کی کچھ شکلیں تھی، آپ نے اس سے منع کر دیا تھا، وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے، یعنی بے غرر سے ہی جڑی ہوئی ہیں وہ شکلیں۔ تو میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا آج، پہلے وہ حدیث بیان کروں گا، اس حدیث کی شرح کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد یہ مسئلہ آپ کے سامنے کلیئر کروں گا، اور اس سلسلے میں ایک ضابطہ ہے، وہ ضابطہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، ایک قانون شریعت کا، ایک ضابطہ شریعت کا، رول کہہ لیجئے، پرنسپل کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، تو الفاظ چاہے جو بھی استعمال کر لیجئے، وہ بھی انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث میں یہ آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، نہا عن بیع حبل الحبلہ، صحیح حدیث ہے، نہا عن بیع حبل الحبلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل الحبلہ سے منع فرمایا ہے۔ یہ حبل الحبلہ کی بیع کیا تھی اس زمانے میں، اس کا جو رواج تھا اور جو یہ خریدنا اور بیچنا اس زمانے میں چلتا تھا، جس کو منع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کی شکل کیا تھی سب سے پہلے، اور کیوں منع کیا، وہ دو چیزیں ہیں، پہلے ہم اس پر بحث کریں گے، پہلے اس کو جو ہے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے حبل الحبلہ، یہ بیع حبل الحبلہ جو حدیث میں لفظ آتا ہے، تو اس کا مطلب کیا شکل تھی اس کی اس زمانے میں۔ تو اس سلسلے میں حدیث کی شرح کرنے والوں نے 4 صورتیں اس کی بتائی۔ 2 کا تعلق جہالت مبیع سے ہے، یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے اسی کو مبیع کہتے ہیں، وہ بار بار الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں اور بار بار جو ہے وہ اس کی شرح کر رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں وہ جو ہے بات بیٹھ جائے۔ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کی جہالت، اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو یہ 2 شکلیں جو ہے اس کی بیان کی ہیں، اور 2 شکلیں جہالت الاجل۔ جہالت الاجل کا مطلب یہ ہے کہ جو پیمنٹ ہے وہ پیمنٹ کب دے گا، خریدنے والا پیمنٹ کب دے گا، وہ 2 شکلیں اس کی بیان کی ہیں۔ تو سب ملا کر کے اس کی 4 شکلیں ذکر کی ہیں حدیث کی شرح لکھنے والوں نے۔ پہلے میں جو کتابوں کی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلی شکل یہ ہے کہ حبل الحبلہ کی، کہ بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ میرا یہ جانور، ہم بکری لے لیتے ہیں یہاں پر اس وقت ایک ایگزامپل کے طور پر، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، کہ میری یہ بکری اس وقت حمل سے ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کے پیٹ کا جو بچہ ہے وہ میں تمہیں بیچ رہا ہوں، میں نے تمہیں بیچ دیا، پہلی شکل۔ تو کس چیز کو بیچ رہا ہے؟ جو بچہ ہے پیٹ پہ، بکری کو نہیں بیچ رہا، بکری کے پیٹ میں پائے جانے والے بچے کو بیچ رہا ہے۔ قیمت جو بھی لگایا ہو، اب تم کو جو ہے 200 میں، 400 میں، 500 میں، 1000 میں، 5000 میں، جو بھی ہو، میں نے تمہیں بیچا، اس نے کہا میں نے خریدا۔ اب وہ جب بچہ پیدا ہوگا نا تب اس کو وہ بچہ مل جائے گا، ابھی پیدا ہونے سے پہلے ہی بیچ دیا۔ تو ایک شکل یہ تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیع غرر قرار دیا اور اسے حرام قرار دیا، اس سے منع کیا، یعنی یہ بیع غرر کی ایک شکل ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو یہ ایک شکل تھی۔ دوسری شکل اس کی کہ اس میں اور تھوڑا ایک سیڑھی اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ میری اس بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ پیدا ہوگا، بعد میں وہ بچہ بڑا ہو کر کے جب اس کو حمل ہوگا، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ آئے گا،
तो उस बच्चे को मैंने तुम्हें बेच दिया। तो ये दूसरी नस्ल की बात होती है इसमें। तो ये जहालत तो और बढ़ जाती है इसमें, यानी जिस चीज को वो बेच रहा है कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। तो ये एक दूसरी शक्ल इसकी। दोनों में फर्क क्या है कि पहली शक्ल में अभी जो पेट में बच्चा है उसको बेचता है, ये तो किसी हद तक चलो पेट में बच्चा है। लेकिन दूसरी जो शक्ल बयान की गई है हब्लुल हब्ला की, उसमें वो बच्चा जो पैदा होगा, अगर वो फीमेल होगा तब ना उसको हमल ठहरेगा, फिर उसको हमल ठहरेगा, बड़ा होने के बाद काफी जमाना काफी अरसा लगेगा, और फिर वो हमल, वो बच्चा जो पैदा होगा उसको अभी से बेच रहा है, अभी से बेच दिया। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के खरीदने और बेचने को आपने हराम करार दिया। ये हबलुल हबला, इससे आपने मना फरमा दिया। ये तो शक्ल थी कि उसी हमल को बेचना। दूसरी जो है दो शक्लें और भी, दो चार शक्लें बताया था मैंने आपको, दो शक्लें और भी वो पहले पेश कर दूं आपके सामने। ये किताबी बातें हैं और आजकल ये सब चीजें पाई नहीं जाती है, लेकिन हम क्यों ये पेश कर रहे हैं कि इसी की रोशनी में हमको आज के मसाइल को जो है तलाश करना होता है। इसी की रोशनी में आज के जो मसाइल होते हैं खरीदने और बेचने के, उस पर हम हुक्म लगाते हैं। दो शक्लें और उसकी तीसरी शक्ल क्या है कि उसका बाज़ हदीसों में इसका जिक्र है कि वो कानू यबताऊन लहूमल जजूरी इला हबलिल हबला। अरबी में इस तरह से अल्फाज आते हैं उसके, कि वो ऊंट का गोश्त खरीदते थे, ऊंट का गोश्त खरीदते थे। कब तक के लिए? हबलुल हबला तक, यानी अभी जो जानवर उसके पास है, यानी बकरी है, मैंने मिसाल पहले ही पेश की है बकरी। तो बकरी अब इस वक्त हामिला है, हमल से है। तो ये बकरी जब बच्चा जन्म देगी तब वो पैसा अदा करेगा। तब वो ऊंट का गोश्त अभी ले लिया, लेने के बाद पेमेंट कब करेगा उसकी? कब करेगा? जब उसकी बकरी बच्चा दे देगी। ये जो है, तो यहाँ क्या है, पेमेंट करने की मुद्दत है। ये बेचने की जो चीज है वो तो मुतय्यन है, वो ऊंट का गोश्त है, ऊंट को ज़बह किया, उसका गोश्त है, वो बेच रहा था तो इसने खरीद लिया वो गोश्त उसमें से, और कहा कि उसका पेमेंट कब करेगा, वो उसका पैसा कब अदा करेगा, उसकी कीमत कह लीजिए, क्योंकि उस जमाने में पैसे की शक्ल में कीमत कम अदा होती थी। तो कहा कि उसकी कीमत, उसकी जो है प्राइस कब अदा करेगा वो, जब उसकी बकरी बच्चा दे देगी। अब ये एक तीसरी शक्ल हो गई। चौथी शक्ल क्या थी? चौथी शक्ल ये थी कि वो ये कहे कि मैंने तुमसे ऊंट का गोश्त खरीदा, लेकिन पैसा, इसकी कीमत मैं कब दूंगा? जब मेरी बकरी जो अभी इस वक्त हमल से है, यानी उसके पेट में बच्चा है, जब वो बच्चा जन्म देगी, फिर उसके बाद उसका बच्चा, अगर वो फीमेल है तो वो बच्चा, फिर वो बड़ा होकर के वो जो जो है हमल से ठहरे, फिर वो बच्चा जने, तब मैं तुमको पैसा दूंगा, तब मैं तुमको इसकी कीमत दूंगा। ये चार शक्लें थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, कहा, मना कर दिया, कहा कि जो है ऐसे तुमको खरीदना बेचना, ऐसे खरीदना बेचना नहीं है। मैं फिर से बहुत जल्दी में ये चार शक्लें आपके सामने पेश करता हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे कुछ सवालात भी होंगे जो आपसे हम करेंगे। एक बात और क्लियर कर दूं कि जहाँ कहीं भी आपको कोई सवाल हो, बीच ही में आप सवाल पूछ सकते हैं। ये कोई तकरीर का दर्स नहीं होता है कि तकरीर को बीच में रोक देंगे तो मुकर्रिर को परेशानी होती है। एक दर्स होता है ना ये, इसको बीच में कोई मसला नहीं, डिस्कशन बीच में भी हो सकता है।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं बाद में आखिर में आपको वक्त दूं तो आप सवाल करें। जहां आपको कुछ लगता है कि यहाँ सवाल की ज़रूरत है, वहीं पर आप सवाल कर ले सकते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये चार शक्लें फिर से मैं बहुत जल्दी में आपके सामने बयान करता हूँ। ये बहुत आसान होती है। दो शक्लें, कोई हमल जो है उसी को बेचा जाता है उसमें, और दो शक्लों में हमल ये एक मुद्दत है और ये एक वक्त है, जिस वक्त पर वो पेमेंट देगा उस वक्त का ये बयान होता है। तो पहली शक्ल मैंने आपसे कहा कि बकरी हमल से है। तो बकरी के मालिक ने कहा कि मैंने इसके पेट में जो बच्चा है वो 1,000 में तुमको बेच दिया, और उसने कहा मैंने खरीद लिया। तो ये हो गया खरीदना बेचना, 1,000 रुपये। अब वो बच्चा जो पैदा होगा तो एक जब उसको उसको वो दे देगा। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। दूसरी शक्ल बताइए आपको कि ये कहे कि मेरी बकरी के पेट में जो बच्चा है, वो बच्चा पैदा होने के बाद जब वो बच्चा हमल उसको ठहरेगा बड़ा होने के बाद, और वो बच्चा देगा, तो उस बच्चे को मैं अभी से आपको बेच रहा हूँ 1,000 रुपये में, 2,000 रुपये में। तो ये एक शक्ल है। ये भी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, तो मना में ये चीज़ तो बदरजे औला आएगी, क्योंकि जब पहली ही शक्ल जायज़ नहीं है तो ये दूसरी में तो जहालत और भी ज्यादा है। तीसरी ये है कि मिसाल दी है हदीस में उसकी, कि जैसे कोई शख्स ये कहे कि मैं तुमसे ऊंट का गोश्त खरीद रहा हूँ, ऊंट का गोश्त खरीद रहा हूँ, खरीद लिया मैंने, लेकिन मैं उसकी कीमत अदा करूंगा जब मेरी बकरी बच्चा जन्म देगी। मेरी बकरी को बच्चा हो जाएगा तो मैं तुमको ये कीमत दे दूंगा। चौथी शक्ल ये है कि वही गोश्त खरीदा, कोई भी चीज, ये गोश्त सिर्फ एक मिसाल है। तो उनके यहाँ ऊँट के गोश्त की बात होती थी, इसलिए वो ऊँट के गोश्त की बात चल रही है आपके सामने मिसाल में। ये ऊँट का गोश्त खरीदा कि मैं ये गोश्त खरीद खरीद लिया तुमसे, लेकिन मैं पेमेंट उस वक्त करूंगा जब मेरी बकरी बच्चा देगी। उसके बाद उसका बच्चा बड़ा हो जाएगा, फिर उसको हमल ठहरेगा, तो जब वो बच्चा जनेगी तब मैं तुमको इसकी कीमत दूंगा, उस वक्त मैं ये जो है कीमत अदा करूंगा। तो ये चार शक्लें बहुत जल्दी में, और ये आसान है, कोई ऐसी मुश्किल भी नहीं है याद रखने के लिए। और न भी याद रहे तो कोई मसला नहीं है। क्यों मना किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? वो चीज़ याद रहे तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। वो तो हदीस का जो हम इम्तिहान लेते हैं तो उस वक्त पूछ लेते हैं स्टूडेंट से कि वो चार शक्लें क्या है, तो स्टूडेंट को याद रखनी पड़ती हैं चार शक्लें। आपके लिए तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये चार शक्लें याद रखें, लेकिन मेन चीज़ उसमें क्या है कि क्यों मना किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस चीज को नोट करना है। क्योंकि आज तो ये शक्ल नहीं पाई जाती है बेचने खरीदने में, और लेकिन इससे कहीं ज्यादा बात ऐसी शक्लें होती हैं आज के दौर में जिसमें इसी तरह की जहालत होती है, इसी तरह का अंदाज होता है। तो क्या वो खरीदना और बेचना जायज होगा या नहीं होगा? जी। अब सबसे पहले हम आपसे सवाल करेंगे कि क्यों मना किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पहले दो में इसकी वजह ये हो सकती है कि मबी जो है गैर मालूम है जी कि हाँ वो जी। बेटा होगा या बेटी होगी, ऐसे। बेटा बेटी मत कहिए ना, कहिए कि जो है आप उनको भी बेटा बेटी करार देंगे क्या? आप कहीं इंसानों का समझ लेंगे तब क्या होगा? जो कहिए कि जो है अब वो जो अब बकरी के पेट से जो पैदा होगा, अब वो मेल है फीमेल है ये पता नहीं, आदत का पता नहीं कि एक होगा दो होगा, क्योंकि बकरी कभी एक बच्चा देती है, कभी दो देती है, कभी तीन देती है, कभी चार भी देती है। तो कितने आदत बच्चे होंगे उसका भी पता नहीं है। समझ रहे हैं ना?
हाँ, यही जी कहना सर। चाह रहे हैं। जी जी जी। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, जी ठीक है। और बताइए। और इसमें इसमें लड़ाई का भी खर्चा है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसी के बाद वो लड़ाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर 4 बच्चे दे दिए तो फिर तो मालिक जो है वो तो बेचा हुआ है, तो अब उसके तो हाथ पैर फूलने लगेंगे। 2 दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन 4 दे दिया तो अब ये 4 बच्चे ना, तो वो पहले ही बेच चुका है, तो अब उसके हाथ पैर फूलने शुरू होंगे, कुछ न कुछ बहाने वगैरह शुरू करेंगे। जी, इसके अलावा भी इसकी लड़ाई की और भी शक्लें हैं। लड़ाई की शक्लें और क्या हो सकती है कि अभी वो बकरी है, अब वो बेच तो दिया है, उसका जो पेट में बच्चा है बेच दिया है, लेकिन मसला यहाँ ये है कि ठीक है, बाद में बकरी को गुम कर दिया उसने, बकरी ही गुम हो गई। हो सकता है उसी ने कर दिया हो, या जो है मान लीजिए यकीनी तौर पर वाकई गुम हो गई बकरी, तो फिर वो बच्चा कहाँ से आएगा, वो मबी कहाँ से देगा उसको। समझ में आई बात आप लोगों को? मैं इसीलिए पहले सवाल कर देता हूँ, ये शक्ल भी आएगी या नहीं आएगी? झगड़ा होगा या नहीं होगा इसके ऊपर? बोलिए। होगा सर। हाँ, होगा। ऊपर वो होगा। भी होगा। जी। होगा शेख। और मसला क्या आएगा? चलो ठीक है, ये सब कुछ नहीं हुआ, बच्चा जो हुआ, कभी क्या होता है ना कि कभी कोई चोट लग गई, कुछ हो गया, तो जैसे मिस कैरेज होता है, तो उस तरह की कोई चीज हो गई, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ सिरे से, तो क्या करें? एक और शक्ल, पैदा हुआ लेकिन मरा हुआ पैदा हुआ। और शक्ल इसकी जो है, मर गई बकरी या जो भी जानवर है वो मर गया। जब वो मर जाए तो फिर बच्चा भी तो गया ना साथ। अब ये जो खरीदा हुआ था वो कहेगा कि भाई जानबूझ करके तुमने ऐसा किया और ये किया, और आकर के लड़ेगा, मेरा पैसा वापस करो, तुमने तो मुझे कुछ दिया नहीं, मुझे तो कुछ मिला नहीं। वो कहेगा भाई जब वो तो उसको हमने बेचा था, जब वो पैदा ही नहीं हुआ है, मिला ही नहीं, जो होता तो आपको दे देते थे, अभी तो हुआ ही नहीं। बकरी मर गई तो हम क्या करें, देखो हमारा तो वैसे ही नुकसान हो गया, बकरी मर गई है। तो ये सारी चीजें पैदा, ये सारे जो है झगड़े की ये शक्लें हैं, जो उसमें झगड़े का, इसको कहते हैं युअद्दी लत्तखासुम अरबी में, कि ये झगड़े का सबब बनेगा। यानी ये सबब बन जाएगा कि आपस में ये लड़ना शुरू करेंगे बाद में। जी, और क्या वजह हो सकती है? अगर वो अभी जो दूसरी शक्ल बताई थी आपको, उसको ले लीजिए अभी, कि ये जो जानवर है अभी इसके पेट में बच्चा है, फिर ये बच्चा पैदा होकर के जब इसको हमल ठहरेगा, तो यहाँ तो और ज्यादा मसला ये है कि अब उसके लिए फीमेल होना जरूरी है ना। फीमेल नहीं है तो बच्चा नहीं जन सकता, उसको तो हमल ठहरेगा नहीं। अगर हो भी गया बच्चा, मान लीजिए 2 हुआ, 1 हुआ, जो भी हुआ, लेकिन क्या है वो मेल है, फीमेल नहीं, तो फिर तो उसका नंबर ही नहीं आएगा ना, वो कहाँ से फिर उसको हमल कहाँ से ठहरेगा और बच्चा कहाँ से देगा? ये तो एक तरह का जुआ भी हो जाता है, कैमार जिसे कहते हैं, कि अब वो फीमेल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो गया पैसा, मसला खत्म, कुछ नहीं मिलने वाला फिर तो ये जो है जो है ये भी एक चीज होती है कि ये बाज शक्लों में जुआ, कैमार का मसला भी होता है। जी हाँ, ये तो हो गया, चलिए 2 की शक्लों की। और बकिया जो 2 शक्लें बताई थी आपको, 3 और 4 की, उसमें जहालत अजल कहते हैं इसको। इसकी इल्लत, इस सबब क्या है कि कब पैसा अदा करें, पेमेंट कब होगा, उसे भी मालूम होना चाहिए। असल में सही इस्लामी तरीका यही है
کہ جب کوئی چیز آپ ادھار لیتے ہیں، ادھار کا مطلب کہ آپ فوراً پیمنٹ نہیں کرتے ہیں، پیمنٹ بعد میں کریں گے، تو کب کریں گے اس کو متعین کر لینا چاہیے۔ اس کے بغیر بھی وہ ہو جاتا ہے، اگر آپس میں انڈرسٹوڈ رہتا ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن اسے متعین ہونا چاہیے، کیونکہ متعین نہ ہو تو پھر آپس میں جھگڑے کا وہ امکان ہو جاتا ہے، یعنی پاسبلٹی جسے آپ کہتے ہیں کہ آپس میں وہ بار بار مانگے، یہ کہنے بھی ابھی نہیں ہے، بعد میں دیتا ہوں بعد میں دیتا ہوں، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی آگے چل کر کے پریشانیاں ہوں گی۔ تو جب ایک مدت متعین ہوتی ہے نا، تو اس میں اس وقت اس کو مانگنے کا حق بھی ہوتا ہے اور اس کو دینا ضروری ہوتا ہے، اگر نہیں ہے اس کے پاس تو جا کر کے اس کو معذرت کرنا ہوتا ہے، مدت کو اور ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کو ایکسٹینڈ کر لے، وہ جو بھی شکل ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اب یہاں وہی بچہ جننے کا مسئلہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ کہہ لیا جائے، مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے وہ بچہ جننے کا، تو بچہ، بکری نے بچہ جنا ہی نہیں، مر گئی پہلے ہی، تو کیا کہے گا بھائی میں نے تو بچہ جننے کے لیے کہا تھا، وہ تو بچہ جنا ہی نہیں اس نے، تو میں کیسے دوں آپ کو جو ہے۔ اب وہ کس وقت، اب کون سی تاریخ رہے گی، کون سا وقت رہے گا، ویسے بھی کب بچہ جنے گی پتہ نہیں، کوئی متعین جو ہے چیز نہیں ہوتی ہے یہ، کب زیادہ تاخیر ہو گئی بچہ جننے میں، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ کب تک بچہ جنے گی، تو وہ بیچنے والا تو بار بار کہے گا بھائی بہت تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا یہ، وہ ایک مسئلہ بھی ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ جھگڑے کا مسئلہ رہتا ہے آپس میں، کیونکہ جو بیچا ہے وہ چاہتا ہے کہ جلدی مجھے پیمنٹ مل جائے، اور جو خریدا ہے وہ لیٹ کرنا چاہے گا، تو اس طرح سے جو جب یہ ڈیلے کرے گا تو آپس میں جھگڑے کا یہ سبب بنے گا۔ حالانکہ اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا جو ہے پہلی اور دوسری دو شکلوں میں ہے۔ اب یہ حدیث کی شرح ہم نے آپ کے سامنے کر دی، ریزن بھی بتا دیا کہ کیوں منع کیا گیا ہے۔ اب میں کچھ سوالات کروں آپ سے، آپ جواب دیں گے انشاءاللہ اسی کی روشنی میں۔ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص دکان پہ گیا اور جا کر کے یہ کہتا ہے، یعنی سامان لے لیا اور سامان لینے کے بعد کہا کہ میں اس کا پیسہ، یہ بل جو ہے نا پیمنٹ کر دوں گا آپ کو جب مجھے سیلری مل جائے گی، مجھے آنے والے مہینے کی جو سیلری ہے، جیسے ہی سیلری ملے گی میں پیمنٹ کر دوں گا آپ کا۔ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ عموماً صحیح ہے۔ سیلری ملنے کا وقت جو ہے متعین ہوتا ہے، 1 سے 2 تاریخ کو ہے۔ جی شیخ صحیح ہے، کیوں ہاں اس کو پتہ ہے کہ مہینے کی نا سیلری آتی رہتی ہے میری شیخ۔ ہاں، تو وہ جو ہے ٹھیک ہے، تو اس کو متعین مانیں گے اور کہیں گے کہ نہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ قرض کی شکل بنتی ہے نا۔ ہاں، قرض ہی کی شکل کا، یہ قرض ہی والا اس شکل کا یہ ہے مسئلہ، جی ہاں۔ تو کیا جو ہے یہ اس طرح سے صحیح ہے یہ، کیونکہ پتہ نہیں کب آئے گی یا نہیں آئے گی، سرے سے سیلری آئی ہی نہیں، اس کے پہلے ہی اس نے کمپنی نے کہہ دیا کہ نہیں جاؤ تم جو ہے۔ نہیں شیخ، اکثر جو ہوتا ہے شیخ، جو کمپنیز میں بھی 1-2 مہینے کا وہ نوٹس پیریڈ ملتا ہے شیخ، تو اس حساب سے اگر سوچیں گے تو ارے شیخ۔ تو چھوڑو کمپنیوں کا، چھوڑو نا، مدرسوں کا لے لو نا، ہمارے مدرسے جو ہے نا دینی مدرسے، جہاں کوئی نظام کوئی قانون نہیں چلتا ہے، وہاں تو بس یہ ہے کہ موڈ میں آ گیا اگر جو ہے، چونکہ زکوٰۃ کے پیسوں سے چلنے والے ہیں نا، تو یہ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سب ہم مالک ہیں، قوم کا پیسہ ہوتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ، اور یہ اس کے مالک بن کے بیٹھے رہتے ہیں، تو جب چاہے جس کو چاہے نکال دیے، تو اس کو کیا پتا ہے۔ اور یہ عام طریقے سے انہی لوگوں کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، مدرسے میں جو لوگ پڑھاتے ہیں ان کے بارے میں، کہ یہ تو تھوڑا سا جو ہے مزاحیہ باتیں آ گئی، جو کہہ دیتا ہوں آپ سے، ہمارے ایک استاد تھے وہ کہتے تھے
کہ اگر فقیر مسکین کی تعریف کرنی ہے، جاننا ہے کہ کون ہوتے ہیں، تو یہ مدرسے میں پڑھانے والے جو مولوی لوگ ہیں نا، یہ وہی جو ہے ان مہینے کا جو آخر ہوتا ہے تو ان کی بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ہر مہینے کے آخر میں کیا شروع ہو جاتا ہے؟ پیسے تو ختم ہو چکے ہوتے ہیں، تو دکانوں سے وہ قرضہ لینا شروع ہو جاتا ہے، بھائی جو ہے وہ گئے لیے کہ اب سیلری آئے گی تو دے دیں گے، آئے گی تو دے دیں گے۔ اور نظام اتنا خراب ہوتا ہے کہ اس کو اگر سامنے رکھیں گے تو یہی کہا جائے گا کہ نہیں، صحیح نہیں ہے یہ، کہ کبھی کبھی 2 2 3 3 مہینے ملتی بھی نہیں ہے سیلری، یعنی 3 3 4 4 کا ایک مرتبہ ہمارے ساتھ تو 6 مہینے کا بھی ہو چکا ہے کہ 6 مہینے تک نہیں ملے، تو ویسا بھی جو ہے مسئلہ ہو جائے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بول کر کے، تو وہ تو یہی مہینہ سمجھ رہا تھا نا، 1 سے لے کر کے 5 تک یا 10 تک کچھ ہوتا ہے، تو کمپنیوں وغیرہ میں تو خیر ٹائم سے وہ چیز ہوتی ہے تو وہ مل ہی جاتی ہے، اور وہ آپ نے کہا کہ نکالنے وغیرہ میں بھی جو ہے پیریڈ ہوتا ہے اس کا، اور اس کے اور عام طریقے سے یہ لوگ اتنا قرضہ وغیرہ ان کو ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، ان کا تو الحمدللہ کام بھی چلتا رہتا ہے۔ زیادہ کس کو پسلا رہتا ہے؟ جن کی سیلری بہت کم ہوتی ہے، تو ان کے مسائل ہوتے ہیں کہ مہینے کے آخر جو ہے 1 فروری کا مہینہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ایک امید رہتی تھی کہ چلو 28 دن میں ہی سیلری مل جائے گی، اس مہینہ ختم ہو جائے گا، لیکن اب اس جو ہے سال تو ایسا ہوا کہ اب یہ بھی 29 کا جائے گا، 29 ڈیز جائے گا یہ بھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ تو یہاں تو مسئلہ آ جاتا ہے، یہ شکل جو ہے وہ آ جاتی ہے، یہ مسئلہ تو پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بجائے اس طرح کے کہنے کے ڈیٹ فکس ہو تو وہ بہتر ہے، لیکن پھر بھی یہ بیچنا اور خریدنا جائز ہے، یاد رکھیے، کیونکہ جنرلی ایسا نہیں ہوتا اس میں کہ یہ کوئی جھگڑا اس کی وجہ سے ہو، عام طریقے سے نہیں، کبھی کسی کے ساتھ ہو گیا تو ہو گیا، تو وہ بہت جو ریئر کیس ہوتے ہیں نا، تو ریئر کیس پر کوئی ضابطہ نہیں بنتا ہے، کوئی اصول نہیں بنتا ہے، تو جو اصول اور ضابطے بنتے ہیں ہمیشہ جو ہے جو جنرلی چیز ہوتی ہے اسی کے اوپر بنائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں کی یہ بات میں مان رہا ہوں کہ یہ صحیح ہوگا، کوئی بات نہیں، اس نے کہا کہ جیسے ہی پیمنٹ آئے گا، یعنی میری سیلری آئے گی میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا، اور یہ انڈرسٹوڈ رہتا ہے آپس میں، جن دکانوں سے وہ سامان لیتے ہیں تو وہاں سے ہمیشہ ایسے ہی لیتے ہیں، ایسے ہی لین دین رہتا ہے، پھر آتی ہے سیلری دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد مہینے کے آخر میں پھر کچھ اس طرح سے ادھار چڑھ جاتا ہے، پھر دے دیتے ہیں، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ تو یہ جب چیز چل رہی ہے اور آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے۔ یہی ہوتا ہے علت جاننے کا، یعنی ریزن جاننے کا۔ اگر ریزن اس کا یہ ہے کہ جھگڑے کا سبب ہے، اور یہاں الحمدللہ کوئی اس کی وجہ سے جھگڑا نہیں بن رہا ہے، کیونکہ ویسا ہو رہا ہے کہ سیلری ملتی ہے تو دے دیتا ہے، سیلری ملتی ہے دے دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے، اور آپس میں یہ چیز جو ہے چل رہی ہے بغیر کسی اختلاف کے، جھگڑے کے، تو کوئی بات نہیں، جائز ہے، ٹھیک کرو۔ جی اب دوسرا سوال کرتا ہوں آپ سے۔ کسانوں کا مسئلہ رہتا ہے، جو لوگ دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں، جو کھیتی کرتے ہیں، ان کا جو ہے یہ ہے کہ وہ گئے کھاد خریدنے کے لیے، کھیتی کے لیے کھاد خرید رہے، اور کہا کہ جب کٹائی کریں گے، یعنی جو پیداوار ہے جب ہو جائے گی، جب ہم اس کی کٹائی کریں گے نا، اس کو بیچیں گے تو آپ کا پیسہ دے دیں گے، یعنی جب ہم بیچ رہے ہیں اس کو کاٹیں گے اور اس وقت ہمارے پاس پیسہ آئے گا تو ہم آپ کا پیسہ دے دیں گے۔ جی صحیح ہے۔ نہیں شیخ، اس سے نہیں ہے شیخ، کیونکہ اس کا مسئلہ وہی ہے کہ وہ شالی یا کوئی بھی پیداوار جو ہو تو اس میں وہ پھر پیداوار نکلے یا برابر بھی نکلے یا نہ نکلے یا جل کر راکھ ہو گئی شیخ، تو پھر وہ مسئلہ بن جاتا ہے شیخ، جھگڑے کا باعث بن جائے گا کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں شیخ، وہ یہ۔ جی ابھی کہاں سے آپ کو دوں گا، وہ کہے گا نہیں لا کے دو، آئیں پھر نئے جس سرے سے پھر کرنا ہوگا تو پھر جائے گا ادھار مانگنے کے لیے، تو دے گا کہ نہیں دے گا، آئیں یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی شیخ۔ جی ہو جائے گا شیخ، ہاں ہو جائے گا۔ ہو جائے گا، کیونکہ غالباً یہ ہوتا ہے کہ فصل ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو بیچتے ہیں غالباً،
कभी हाँ, कभी ऐसा होता है कि ना हो। तो कभी जैसे आपने कभी पहले रेयर बताया केस कि होता है, इस्तिस्नाई केस में जो है कायदा नहीं रेयर बनाया केस जाता। है ये। तो आम तरीके से तो ये होता है कि वही, असल में खेती करने वाले करते ऐसे ही है, मैं बता रहा हूँ आपको जो है, कि उनके पैसों का मसला रहता है, बहुत ज़्यादा पैसे उनके पास नहीं होते, किसान ही सबसे गरीब मिस्कीन होते हैं आज के दौर के। तो वो अक्सर खेती के वक्त में ही जब वो कटाई करते हैं ना, तभी बहुत सी चीज़ें वो अदा करते हैं उस वक्त, और उनके ऊपर कर्जे रहते हैं उसके। अब कभी ऐसा हो सकता है कि सैलाब की शक्ल हो गई, यानी फ्लड जिसे आप कहते हैं, फ्लड आ गया, कोई भी आसमानी मुसीबत जिसे कहते हैं, जैसे अभी आप कह रहे थे मिसाल में कि आग लग गई, पूरी फसल जल गई। हाँ, ये होता है। तो ऐसे मौके पर मदद की जाती है ऐसे लोग, ये तरीका होता है कि उनकी मदद की जाए। और और भी जो है इसकी ये है, तो जितनी उसकी मदद कर सकते हैं मदद करें। जिन्होंने उसको बीज बेचा था, अगर वो उसको माफ कर सकते हैं तो माफ ही कर दे, अगर माफ नहीं कर सकते हैं तो कुछ उसमें से कम कर दे, और इनके लोग, दूसरे लोग इसकी मदद करें। ये तो मुसीबत है ना उसके, तो मुसीबत के वक्त में मदद की जाती है उनकी। तो फ्लड वगैरह के जो लोग शिकार होते हैं, जो है उनकी मदद होती है, तो मदद जो आएगी तो उसी में से वो पैसा जो है अदा भी कर देगा। गवर्नमेंट कभी करती है, कभी गवर्नमेंट नहीं भी की तो लोग करते हैं, और उनके लिए वो मदद लेना जायज भी होता है। ठीक है। तो लेकिन वो रेयर केस ही है, बहुत ज्यादा नहीं होता, ये जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली यही है कि वो जब आता है पैसा तो वो लोग दे देते हैं। लेकिन अगर कोई चाहे बहाना बना ले इसको और ना देना चाहे, तो मसला बहरहाल आ सकता है, और ऐसी शक्ल में पैसा बहरहाल उसे अदा करना होता है, वो कर्जा है उसके ऊपर। और कर्जे की अदायगी के लिए उसको ज़कात की रकम भी लेना जायज़ होगा उस वक्त, क्योंकि ये ऐसे लोग आम तरीके से उनकी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती है। तो बहरहाल वो जो भी शक्ल होगी, वो पैसा जिस शक्ल में भी उसके पास आएगा वो अदा कर देगा फिर उसे। जी, ठीक है। यही सवाल यही बंद कर दूं? अब आगे जो है सवाल करता हूं आपसे जानवर के ताल्लुक से। जानवर को खरीदने गए, तो जानवर खरीदा, वो जानवर हमल से है, तो हामिला जानवर को खरीद लिया। अब उसके पेट में क्या है वो हमको पता नहीं है, तो ये खरीदना जायज होगा या नहीं होगा? जायज होगा इंशाल्लाह। ये जायज है। जी, क्योंकि जिसको खरीदे हैं वो तो दिख रहा है। और पेट में जो है वो पता नहीं। तो उसके उसका उसकी बेई तो नहीं हुई ना, जिसकी जी बेई हाँ, हुई है वो तो तो मालूम। क्योंकि वो हमल का जो जानवर होता है उसकी कीमत ज्यादा होती है, उसी लिहाज से उसकी कीमत लगती है। जी, तो ये जायज है, ये कह रहे हैं कि जायज है। आप सब लोग भी इसको नोट कर लीजिए कि ये जायज है। यहाँ कायदा क्या है, इसको कहते हैं बे गरर का ये कायदा, ये जाब्ता क्या है, कि अगर गरर असल में नहीं है, ताबे में, असल में नहीं है ताबे में है, तो उसको खरीदना बेचना जायज है। अब ये चीज इसको समझना, अरबी में इसको जो है अल गररु फित्ताबे ला फिल अस्ल कहते हैं। क्या मतलब है इसका? कि असल जो बेच रहा है, खरीद रहा है, जो क्या है, वो जानवर है। असल यहाँ वो हमल को नहीं बेचा जा रहा, बल्कि जो है जानवर को बेचा जा रहा, ये असल में। ताबे का मतलब क्या है यहाँ पर, कि उस जानवर के साथ जो उसके पेट में है वो खुद ब खुद आएगा, तो इसको कहते हैं ताबे अरबी में। यानी वो उसके पीछे लग करके खुद ब खुद आएगा। असल तो वो खरीद रहा है जानवर जो कि उसकी आंखों के सामने मौजूद है, तो ये जायज है। तो कहते हैं कि अगर ये गरर
यानी हमको पता नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है, क्या कितना जो है बच्चा पैदा होगा नहीं होगा, ये ताबे में है, असल में नहीं है। तो उसको खरीदना बेचना जायज होता है, इसमें कोई हरज नहीं, ये ज़ाब्ता है इसका। अब इस ज़ाब्ते की रोशनी में आपसे ये मैंने कहा कि गरर के मसले के दो ज़ाब्ते, ये पहला ज़ाब्ता कि अगर ये गरर ताबे में है असल में नहीं। असल और ताबे की बात मैंने बयान कर दिया, यानी जो चीज़ बेच रहे हैं, असल जो चीज़ बेच रहे हैं वो आंखों के सामने है, उसमें कोई जहालत नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ है, उसके अंदर ये मसला है, उसके बारे में पता नहीं है, तो फिर उसमें कोई हरज नहीं है, उसको खरीदना बेचना जायज होता है। अब इसी की रोशनी में मैं आपसे सवाल करता हूँ, आज के दौर के लिहाज से एक घर बना हुआ घर है, बना हुआ घर, तामीर किया हुआ, बिल्ट, जैसे अभी आप फ्लैट वगैरह है जो इस तरह के शहरों में जो घर बने बनाए बिकते हैं, बिल्डिंग है पूरी बनी हुई, वो बेच रहे हैं, कोई कोई खरीद रहा है, तो इसको खरीदना बेचना जायज है या नहीं? जी बोलिए। जायज है। हाँ, और भी लोग जवाब जवाब दे, मैं तो सोच रहा हूँ कि कुछ और लोगों की आवाज नहीं आ रही, क्या लगता है कि लोग सो रहे हैं या क्या है? जायज है। जायज है। हाँ। इसमें कोई इस जिहालत का मसला नहीं ना। जी, इसमें भी सेम वही मसला होता है जो जानवर का है। कौन सा जानवर? जिसके पेट में बच्चा है। यहाँ पर बिल्डिंग का वो हिस्सा हमको नजर आता है जो ऊपर है, बिल्डिंग का वो हिस्सा जो नीचे है, जिसे आज की जबान में आप फाउंडेशन कहते हैं, उसकी अपनी जगह पर बड़ी अहमियत भी है, वो फाउंडेशन नजर नहीं आता। तो फाउंडेशन कैसा है इसका, बिल्डिंग का, वो हमारे सामने नहीं है। यहाँ जहालत, वो बेचने वाला कुछ भी कह सकता है, उसके कहने का तो एतबार नहीं कर सकते ना। वो कहेगा कि भाई ये है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन वो ऐसा किया है नहीं किया है क्या पता। वो तो कह दिया तो खैर जहालत खत्म हो जाती है, लेकिन लोग आजकल इतना झूठ बोलते हैं, आप समझ सकते हैं उसको। तो जो चीज हमारी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन फिर भी वो जायज है। क्यों जायज है? कि ये जो है ना, असल पूरी बिल्डिंग है। अब वो बिल्डिंग बनाया है तो बेस में उसका जो है बेस तो रहेगा ही लाजमी तौर पर। अब वो कितना मजबूत है उसका इल्म तो नहीं है हमें, उसमें है थोड़ी जहालत, और उस पर झूठ बोलने का इम्कान भी है वो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। इसी तरह से जो ऊपर हिस्सा हमको नजर आ रहा, उसमें भी ये गुंजाइश होती है कि जो प्लास्टर किया हुआ है, वो कम सीमेंट डाल करके बहुत अच्छे किस्म का ना किया हो तो बहुत जल्दी छूटने लगेगा। तो ये सब चीजें क्या है, ताबे हैं। असल तो वो बिल्डिंग है, पूरी इमारत है जो सामने नजर आ रही है, और कुछ चीजें उसकी जुड़ी हुई उससे हैं, कुछ हो सकता है कि कहीं कोई खराबी हो, अच्छी तरह से न किया हुआ, तो उसमें अगर कोई ऐसी चीज हो भी जाती है तब भी उसका खरीदना और बेचना जायज है। फ्लैट है, ऐसे ही फ्लैट खरीद लिया, तो फ्लैट उसकी जमीन की वो मालूम रहती है, और आम तरीके से फाउंडेशन वगैरह ठीक ही डालते हैं उसमें। अब कितना मजबूत डाला है उतना तो नहीं, लेकिन बहरहाल होता है आम तरीके से। लेकिन जो काम किया है, किस तरह का किया है, कितना मजबूत किया है, खुद फ्लैट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें भी होता है ना काम की, ये जो है आप जानते हैं ना कि 3 ग्रेड के काम होते हैं उसमें भी। ए ग्रेड का होता है, बी ग्रेड का होता है, सी ग्रेड का होता है, और उसी के लिहाज से अलग अलग उसकी वो कीमत बनती है। लेकिन हमको उतना पता नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत अंदाजा करने वाले कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पता नहीं लगता है।
फिर भी वो जायज़ है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ हुई भी तो वो ताबे है, वो असल नहीं होता है। तो उतना मतलब ये कि वो चलता है, वो झगड़े का सबब भी नहीं बनता आम तरीके से। जी। अब दूसरी एक ज़ाब्ता ये था। दूसरा ज़ाब्ता ये है कि अगर गरर बहुत थोड़ा, अलगररुल यसीर कहते हैं अरबी में, तो ये माफू अनहो है। अरबी में कहा जाता है इसको कि वो माफू अनहो है, यानी बहुत मामूली सा उसमें चीज, तो अक्सर तो मालूम है चीज, लेकिन कुछ उसमें से ऐसा है कि उसका पता नहीं है, मालूम नहीं है उसके ताल्लुक से, तो कहते हैं कि ये मामूली गरर, इसको नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इसका जो है ठीक है, उसमें अगर जहालत है भी, तब भी उसका खरीदना और बेचना जायज होता है और जायज है। बहुत मामूली सा हो, बहुत ज्यादा रहेगा तो खैर वो झगड़े का सबब यकीन बनेगा हो, लेकिन मामूली सा, उसमें कुछ इस तरह की 19-20 चीजें होती है, वो मालूम है उसके बारे में कि जिस तरह का नजर आता था वैसा उतना तो नहीं रहेगा वो, थोड़ा बहुत तो रहेगा उसके अंदर। नहीं, जैसे आजकल ऑनलाइन बहुत सी चीजें आप खरीदते हैं, तभी वो चीज आपको दिखा दी जाती है और उसकी तस्वीर देख लेते हैं आप, शक्ल देख लेते हैं आप, क्या करते हैं उसको ऑर्डर कर देते हैं, आती है। तो जैसा आपको, जब वो आपके पास ऑर्डर पहुंचता है ना, तो जितना उसमें नजर आ रहा था वैसा जो है नजर नहीं आ रहा। तो फर्क है ये इसमें और उसमें, जो नजर आ रहा था उसमें। तो ये थोड़ा बहुत अगर है तो इसमें कोई मसला नहीं है, इसकी वजह से वो चीज़ जायज़ होती है, कोई बात नहीं। इसको अरबी में क्या कहते हैं, इसका कायदा ज़ाब्ता क्या है कि अल गररुल यसीरु माफून अन। मामूली सी अगर कोई चीज़ उसकी, उसका पता नहीं था उसके बारे में कि वो क्या होगा, क्या कैसे रहेगा, और वो चीज़ आई, आप जिस तरह से चाहते थे वैसा नहीं है, तब भी कोई बात नहीं है। वो चीज़ जो आपने खरीदी है वही चीज़ है वो। तो थोड़ा बहुत मामूली सा अगर फर्क है तो उस फर्क को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और वो खरीदना और बेचना जायज हो जाएगा। जी। इसी में जहालत के ताल्लुक से और भी शक्लें इसकी होती हैं। मैंने तो ऐसे ही आपको एक समझने के लिए मिसाल दी है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा जहालत का मसला नहीं, बल्कि ये होता है कि जो चीज़ आपको दिखाई गई थी, जिस तरह की वो नज़र आ रही थी, उसमें कुछ कमी बेशी नज़र आ, जब आपको मिली वो चीज़ तो कुछ कमी बेशी थी, होता है, कमी बेशी होती है। अभी आपके साथ ये घर वगैरह बनाने के एग्रीमेंट वगैरह कर लेते हैं, कोई बिल्डर होता है, बनाता है घर, तो एग्रीमेंट हो जाता है मान लीजिए। अब वो घर बना रहा है, तो जो चीजें एग्रीमेंट में होती है ना, तो कुछ ऐसी चीजें भी रहेंगी जो एक एक चीज का तो नहीं रहता उसमें, वो लिखा हुआ भी नहीं रहता है, तो कुछ करता है उसमें। और आम तरीके से उतना थोड़ा बहुत चलाते हैं वो लोग, करते हैं, मालूम है कि वो लोग ऐसा करते हैं, इसके बावजूद भी वो एग्रीमेंट बनता है, वो काम करते हैं, वो काम चलता है। तो कहते हैं कि ये थोड़ा बहुत क्या है, ये माफू अनहु है, इसको जो है नजरअंदाज करो। अगर इसको नजरअंदाज नहीं करोगे तो फिर ये काम चलेगा ही नहीं, काम होगा ही नहीं, तो परेशानी रहेगी हमेशा उसके अंदर। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इसी को कहते हैं अलगरर यसीरु माफून अनहु, अरबी में उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो ज़ाब्ते हैं, इसको याद रखिए। एक क्या है कि अगर ये गरर ताबे में है, यानी असल जो चीज़ बेची गई है, खरीदी गई है, उसमें नहीं है, उससे जुड़ी हुई किसी चीज़ के अंदर है, जो उसी से जुड़ी हुई चीज़ है वो भी साथ में आएगी वो चीज़, तो फिर उसका कोई ख़ास एतबार नहीं होता है। और अगर वहाँ पे जहालत है भी, तब भी उसका खरीदना बेचना जायज़ होता है। या बहुत मामूली सा गरर है अगर, जो आम तरीके से सोसाइटी में, समाज में उतना लोग नज़रअंदाज करते हैं, उसका ख्याल नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, उसका खरीदना बेचना जायज़ होता है। गेहूं आपने खरीदा किसी से, पहले हम लोगों के यहाँ ये बहुत होता था, अब तो गेहूं वगैरह की खरीदारी नहीं रहती है। गेहूं खरीद लिया आपने, गेहूं खरीद करके लाए तो उसमें सरसों पहले रहती थी, सरसों, ये मास्टर्ड ऑयल जो होता है ना, मास्टर्ड,
तो वो बाकायदा गेहूं लेके आते थे, साथ में सरसों भी कुछ उसमें रहती थी, या उसमें जो है जो कंकड़ रहते थे, पत्थर छोटे छोटे। अब जाहिर सी बात है, कंकड़ तो नहीं खरीदा है, कि खरीदा तो गेहूं है, लेकिन है उसमें छोटे से थोड़े थोड़े से, वो एक कॉमन चीज थी कि ये रहते थे। बहुत ज्यादा साफ करके नहीं बेचे जाते थे, अभी तो सब साफ करके बिक रहे हैं। और आप जो जहाँ जाते हैं खरीदने के लिए, तो सब साफ सुथरी चीज मिलती है। तो उस वक्त तो वैसा नहीं रहता था। तो वो थोड़ी बहुत चीजें क्या है, वो माफ हुआ, कोई मसला नहीं उसके, वो चीज जायज होती है, खरीद लिए बेच लिए, वो ठीक है, कोई बात। जी, ये बात थी जो हदीस थी, उसकी शरह मैंने आपके सामने की है। कुछ मसाइल आज के दौर में भी रहते हैं, थोड़े बहुत जो है लेन देन में, थोड़ा बहुत कहीं कहीं लेकिन रहता है उसमें। तो बहुत ज्यादा ना हो, थोड़ा बहुत हो, तो उसको नजरअंदाज किया जाता है, ये भी है। जी, अब कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। ठीक, जो आपने नाम बताया बैल हबल बताया जी। हबलुल हबला, हा बा लाम, उसके बाद फिर अलिफ लाम, असल में हमजा होता है लेकिन ऐसे बोल देते हैं हम। जी। अलिफ लाम हा बा लाम ता, ता मबसूता कहते हैं, ता मुदव्वरा कह लीजिए, यानी ये जो है राउंड था। जी। हम्म, यानी हबल यानी रस्सी के माने में। हम्म। ये जो है ना, वो पेट में जो बच्चा होता है उसको भी अरबी में बोलते हैं। अच्छा। ठीक जी। शेख, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई नई चीज़ इसमें रिबा है कि नहीं? तो मैं इसकी हाँ, पहचान कैसे कैसे? कुछ नई चीज़ है जैसे हमें पता नहीं इसके बारे में, उसमें कैसे पता करेंगे इसमें रिबा है कि नहीं? रेबा के बाद, हाँ, रेबा का तो मालूम हो जाता है ना, रेबा कैसे नहीं मालूम होगा? जैसे कोई चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है, या कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वगैरह। हाँ, इन्वेस्ट वगैरह का तो वहाँ तो ये इन्वेस्ट का मसला अलग होता है, ये खरीदने बेचने का नहीं है वो, इंशाल्लाह। वो शरीका बोल करके एक हमारा, इसके बाद जब ये खरीदने बेचने के मसाइल खत्म हो जाएंगे ना, तो बाद में उसी से जुड़े हुए और भी बहुत से मसाइल आए, वो तो उसमें से एक शरीका होता है ये। शरीका का मतलब इसमें यही होता है, जब आप, कोई एक कंपनी होती है उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट के क्या मसाइल है वो आएगी आपके साथ। मैं आपको थोड़ा जो है, आपको इसी पर जो है थोड़ा ब्रीफ चीजें कहते हैं ना, कि ये थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। आप गए कोई सामान लेने के लिए, वो सामान आदद के लिहाज से बिकता है, अदद के लिहाज से बिकता है, जैसे वजन से नहीं, अदद से। पकौड़ा खरीदने गए आप, तो एक पकौड़ा 10 रुपये का, आपने पैसा दे दिया, अभी आपके सामने पकौड़ा है नहीं, वो अभी वो गरम गरम वो जो है छानता रहता है ना, वो बेचता रहता है, उसका एक अंदाजा होता है, उसी के लिहाज से वो बनाता है। तो जो आपने देखा था उस वक्त, वो जो बिक गया हो, किसी और को दे दिया उसने, और आपने पैसा भी दे दिया, और जो है अब वो नया जो बना रहा वो दे रहा है, तो हो सकता है कि ये जो है उसके मुकाबले में थोड़ा बहुत छोटा हो, कोई एक छोटा, कोई एक थोड़ा बड़ा। तो ये बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क, क्योंकि अब हाथ से वो डालता है उसको, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है उसमें। ठीक है, तो इसमें कोई हरज नहीं है, आप यहाँ नहीं कहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे कि भाई वो तो बड़ा था, ये छोटा है, ऐसा है वैसा है, नहीं। या आप जाएं तो आप उससे ये कहें कि नहीं, जो है वो जो बड़ा बड़ा है मैं वही चुन करके लूंगा। वो कहता है भाई, चुनने का नहीं होता, एक तरफ से ये लेना है।
तो ये थोड़ा बहुत छोटा बड़ा जो हो जा रहा है, हालांकि 10 ही रुपए का सब है, तो कोई मसला नहीं है इसमें। यही कतरा मैं कह रहा था आपको कि गरर यसीर कहते हैं इसमें, थोड़ा सा जो है ये फर्क जो है ना, ये इसमें कोई हरज की बात नहीं। ऐसे ही चीजें जो बनती है ना, उसमें भी थोड़ा बहुत इस तरह का फर्क आता है। कपड़े तैयार करते हैं तो एक साड़ी तैयार करते हैं तो एक साड़ी बिल्कुल ही परफेक्ट बिल्कुल रहती है, एक थोड़ा बहुत उसमें कुछ कमी आ जाती है, कहीं ना कहीं एक धागा टूट गया, कुछ हो गया, तो वो थोड़ा जो है ये चलता है, कहते हैं इसको। ये थोड़ी चीजें हो जाए तो इसमें कोई बात नहीं, तो ये वो खरीदना बेचना जायज होता है, और इसकी वजह से फिर लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। गरर यसीर कहते हैं चले, कोई बात। आम तरीके से ये चीजें झगड़े का सबब नहीं बनती है समाज में, तो वो चीजें जो है जायज रहती, फिर कोई मसला नहीं रहता। एक बात और बताऊं इसमें आपको, कि हमको सही से पता नहीं होता है उसका, लेकिन वो थोड़ा बहुत फर्क रहता है, तो कोई बात नहीं। किसी को काम पे रखा आप, तो काम पे रखते हुए आपने ये कहा, या आप लोग कंपनियों में जो काम वगैरह करते हैं, कि ठीक है आपकी सैलरी 50,000 रहेगी, और दोपहर का खाना देंगे साथ में, दोपहर को वही रहेंगे तो रात में दोपहर का खाना। अब ये खाना एक आदमी कम खाएगा, एक आदमी ज्यादा खाएगा, तो खाने की जो मिकदार सबकी एक जैसी नहीं होगी। इसी तरह से ये खाना क्या रहेगा, उसके बारे में कुछ तय नहीं किया कि कैसा रहेगा खाना। बस ये कि जो है एक टाइम का खाना, या ये कह दिया कि खाना और रहने की जगह हम देंगे। जैसे ये रहता है ना सर्विस में, ये होता है कि खाना और रहने की जगह देंगे, ये खरीदने बेचने का नहीं है। ये एक मिसाल दे रहा हूँ बस, ये तो की जो है बस ये थोड़ा सा गरर कहते हैं इसको, तो इसमें कोई हरज नहीं है उसके लिए, ये खरीदने बेचने का नहीं। तो कहा कि ठीक है आपको तीनों टाइम खाना देंगे, रहने की जगह देंगे, और ये सैलरी देंगे। तो ठीक है, अब ये खाना कैसा रहेगा वो तो मुतय्यन नहीं किया, कितना रहेगा मुतय्यन तो नहीं किया है उसमें, न उसकी क्वांटिटी न उसकी क्वालिटी। वो जैसा चलता है आम तरीके से ऐसे मौके पर, वैसे ही जो है वो उसमें कम ज्यादा थोड़ा बहुत, कोई कम खाता है कोई ज्यादा खाता है। अगर ज्यादा खा लिया तो उसके ऊपर कोई ये नहीं कि जो है अरे इतना खा रहा है ये, पूरा घर ही खत्म हो जाए, कहीं ऐसा तो नादिर ही होता है ना, रेयर केस में होता है कभी। तो बहरहाल ये मैंने आपसे कहा कि इसी को गररे यसीर कहते हैं, थोड़ा समझने के लिए मैंने ये मिसालें दी। हम्म, बस करें, अजान हो गई है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।